Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about various types of connective tissues. We have discussed that connective tissues are those which will be connecting different parts or different organs of the body. It was of different types, that is, bones and cartilages, tendons and ligaments, areolar and adipose connective tissue, and blood. All these types of connective tissues were being discussed by us in detail. Now we are moving on to the next type of tissue present in our body, which is very important for the purpose of movement of our body, and that is the muscular tissue. The muscular tissue is having the cells which are elongated. मतलब बहुत ही लंबे सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, and therefore these muscle cells are also known as muscle fibers. Okay, so muscular tissue, it consists of elongated cells which are known as muscle fibers. They are known as muscle fiber. So as it appears like a fiber, as it appears long, as it appears a long structure, it is known as muscle fiber instead of muscle cell. You can use the word muscle cell also, but at all the places you will read that it is known as muscle fiber. Now this muscle fibers or muscular tissue, it helps in the movement of our body. So function of the muscular tissue is the movement of body and body parts. तो हमारी जो बॉडी है, या तो कोई पर्टिकुलर पूरा लोकोमोशन की बात कर लेते हैं, मतलब एक से दूसरी जगह जाना हो तो भी, और सिर्फ आपको एक ही जगह पे कोई मूवमेंट करनी है, एट दैट टाइम ऑल्सो मस्कुलर टिश्यू हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ दिस मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स विद इन देम. Muscle fiber has presence of specialized proteins within them, which are known as contractile proteins. These contractile proteins will be doing the function of contraction and relaxation. So there is the muscle fiber consists of contractile proteins, and these contractile proteins have an ability of contraction and relaxation, and this contraction and relaxation enables the movement in an organism. जो मसल फाइबर होता है उसके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं. ये जो प्रोटीन्स हैं इन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. स्पेसिफिकली ये प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन. नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज एक्टिन एंड मायोसिन. तो ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं, दे हैव एन एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और मसल्स जो हैं वो बोन से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से बोन का भी मूवमेंट उसी डायरेक्शन में पॉसिबल बन जाता है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर वापस रिलैक्स हो जाना, ये जो फंक्शन है वो इन प्रोटीन्स का होता है, और इसी फंक्शन की वजह से कोई भी तरह का मूवमेंट पॉसिबल होता है. अदरवाइज द मूवमेंट विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल. Now another
thing that in muscular tissue, when we are talking about that there is presence of these proteins and it helps in the movement, but are all muscle fibers same? Are all muscular tissues same? No. Muscular tissue consists of 3 different types of muscles. So we are going to discuss about the types of muscles. Types of muscles. तो टाइप ऑफ मसल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की. वी विल टॉक अबाउट स्केलेटल मसल. ओके, तो स्केलेटल मसल जो होता है, दिस मसल will be attached to our bones. Skeletal muscle is always attached to the bones and it is present in the limbs, tongue and such parts. ठीक है. स्केलेटल मसल जो होता है, ये स्केलेटल मसल हमारे बोन्स के साथ कनेक्टेड होता है. मतलब हमारे जो लिम्स हैं उनके साथ, हमारे जो लिम्स के बोन्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है. टंग है उसमें भी स्केलेटल मसल है. तो स्केलेटल मसल में ऐसा क्या है जो दूसरे मसल्स में नहीं है? तो स्केलेटल मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी मूवमेंट्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी मूवमेंट. वॉलेंटरी मतलब मूवमेंट अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर. Here the movement is going to occur according to our desire. For example, limbs है तो limbs का movement आपको करना है तो ही आप करोगे, right? Tongue है, आपको बोलना है तो ही आप बोलोगे. तो यहाँ पे ये जो muscles हैं, they are working on what basis? They are working whether you desire to do that work or not. Okay, you will be walking, you think of walking and therefore you are able to walk. So these muscles are under whose control? Under your control. आप रेगुलेट करते हो the working of these muscles. इसीलिए जो मसल्स का काम हम रेगुलेट करते हैं और जो मसल्स बोन के साथ कनेक्टेड है उन्हें क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल इज also known as striated muscle. Another word for this is striated. तो अगर आप स्केलेटल मसल कहो, वॉलेंटरी मसल कहो या स्ट्राइटेड मसल, स्केलेटल मसल, वॉलेंटरी मसल या स्ट्राइटेड मसल, तीनों का मीनिंग एक ही है. स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ alternate light and dark bands. There is presence of alternate light and dark band in the muscle fiber. For example, ये सेल ऐसा है, right? तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ये डार्क बैंड हो गए और ये साइड में light bands. Again there will be light bands. Again there will be dark bands. So alternated light or dark bands are visible over here, right? ये dark band है और ये light band है. Again there is a light band, again there is a dark band, and this will continue throughout the length of muscle fiber. Muscle fiber का जितना भी length है उसमें पूरे में हमें डार्क लाइट बैंड दिखेंगे. ये बैंड में होते हैं प्रोटीन्स. कौन से प्रोटीन्स? एक्टिन और मायोसिन. और इसी की वजह से इनका अपीयरेंस स्ट्राइटेड मतलब स्ट्रिप्ड, राइट? लाइंस की तरह स्ट्रिप्ड दिखेगा, इसीलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं. इनके जो सेल्स हैं मतलब जो मसल फाइबर हैं, मसल फाइबर्स आर elongated, cylindrical and they are most importantly multinucleate.
Which type of muscle cells are there? Multinucleate. Multinucleate मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं. There are more nucleus present. एक ही मसल सेल है, ये पूरा एक ही सेल है, पर एक सेल में बहुत सारे स्ट्राइएशंस हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और ये सेल कैसा है? इलोंगेटेड है. ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो स्केलेटल मसल के होते हैं. स्केलेटल मसल जो है हमेशा बोन से अटैच्ड होता है, लिम्स और टंग में प्रेजेंट होता है, वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, स्ट्राइएटेड भी कहा जाता है क्योंकि इनमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, और स्केलेटल मसल फाइबर्स इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. The second type of muscles are your smooth muscles. Now these smooth muscles, जब हम बोल रहे हैं smooth muscles, तो यहाँ पे ये जो cells हैं, they lack any striations. Okay, there are no alternate dark and light बैंड्स. मतलब यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते नहीं है. इंस्टेड दीज आर नॉन वॉलेंटरी और यू कैन से इनवॉलेंटरी. इनवॉलेंटरी मतलब इन्हें हम रेगुलेट नहीं करते, ये अपने आप से रेगुलेट होते हैं विद इन अवर बॉडी with the help of our nervous system. This is regulated by autonomic nervous system, जिसका रेगुलेशन हम voluntarily नहीं करते. So this involuntary means जो अपने आप से काम कर रहा है. तो for example, muscles of elementary canal. Muscles of elementary कैनाल. हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसमें हमें नहीं कहना पड़ता कि फूड को अब आगे पास ऑन होना है तो एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है. नहीं, इट मूव्स ऑन इट्स ओन, राइट. दूसरा है हमारे ब्लड वेसल्स. जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल थोड़ी ब्रॉड हो जाती है. जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो वो जो मसल्स है ब्लड वेसल की वो थोड़ी नैरो हो जाती है. तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, who regulates it? It is involuntary, regulated by our smooth muscles. Another is iris of our eyes. Iris के जो muscles हैं, right? जब हम डार्क में जाते हैं तो ये आईज जो है प्यूपिल वाइड ओपन हो जाता है, और जब हम लाइट में आते हैं तो ये प्यूपिल का डायमेंशन कम हो जाता है. तो आइरिस के मसल्स को हम नहीं रेगुलेट करते, वो ऑटोमेटिक रेगुलेट हो ही जाते हैं, और इसीलिए वो किस में आते हैं? स्मूथ मसल. तो जब हम स्केलेटल को बोलते हैं वॉलेंटरी, तो स्मूथ को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंटरी. स्केलेटल को हम कहते हैं स्ट्राइएटेड, स्मूथ को हम कहते हैं नॉन स्ट्राइएटेड, राइट. स्केलेटल जो है वो इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल है, और स्मूथ मसल्स जो है वो स्पिंडल शेप है. दे आर स्पिंडल शेप. Skeletal muscles are multinucleate. These are uninucleate. So there is a considerable difference between skeletal and smooth muscle. Skeletal bone से attached होती है, जबकि smooth muscles कभी भी bone से attached नहीं होती है. They are not attached to your bones, right? तो ये दोनों, ये difference हो गए दोनों के बीच में. अब हम बात करते हैं about the third type of muscle, that is cardiac muscle. So the third type of muscles that we need to talk about are the cardiac muscles. Now there are some muscles which are present exclusively in the wall of heart. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वॉल ऑफ हार्ट. तो ये जो हार्ट के वॉल में प्रेजेंट है, ये मसल्स, इन्हें कहा जाता है कार्डियक
So they are present in the wall of heart. These muscles will be involuntary, मतलब ये जो है इन्हें भी हम रेगुलेट नहीं करते, वो सेल्फ रेगुलेटरी होती है. हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का जो पंपिंग है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्ट इटसेल्फ and partly by your nervous system. So it is also going to be involuntary in action. जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, it controls on its own. इसीलिए it is involuntary in its action. These are having a striated appearance. They are having a striated appearance like skeletal muscles, but they are uninucleate like smooth muscles. Smooth muscle की तरह uninucleated होते हैं और striated appearance होता है like a skeletal muscle. मतलब skeletal का भी कैरेक्टर है और smooth muscle का भी कैरेक्टर है. बट यहाँ पे ये जो cells होते हैं, these are somewhat elongated, cylindrical and branched. Cylindrical and branched. The very important property of cardiac muscle is that these muscles are never tiring muscles. मतलब कभी थकते ही नहीं हैं, right? They continuously 24/7 they do the function of contraction and relaxation, right? तो इसे कहा जाता है these are never fatigue. Never fatigue मतलब कभी भी थकते नहीं है, थके बिना ही काम करते ही रहते हैं. जबकि हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो आप आपका हैंड लिफ्ट करके 2, 3, 4 मिनट खड़े रहिए, राइट? दीज मसल्स आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड. इफ यू कीप योर हैंड लाइक दिस फॉर सम टाइम, इट स्टार्ट्स पेनिंग. दिस इंडिकेट्स दैट स्केलेटल मसल्स आर वेरी इजीली फैटिग, बहुत जल्दी थक जाते हैं. Smooth muscles comparatively are very rarely fatigued and cardiac muscles are never fatigued, मतलब non tiring होते हैं, right? Cardiac muscles का अगर हम डायग्राम ऑब्जर्व करें तो cardiac muscles में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा रैपिडली होता है और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन जो है, दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू रीच into each muscle cell. Like this, there is presence of branches and intercalated disc. बीच में एक न्यूक्लियस है, इसीलिए ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, राइट? और यहां पे हमें देखने को मिलेंगे स्ट्राइएशंस, राइट? जो एक्टिन और मायोसिन के जो स्ट्राइएशंस, मतलब ये जो लाइनिंग दिख रही है, दैट इज ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर टू दैट ऑफ द स्केलेटल मसल. ऐसे हर एक सेल में होगा, राइट? इन ऑल द सेल्स दिस स्ट्राइएशंस विल बी observed. So this is a cardiac muscle fiber. This is its nucleus. This is known as intercalated disc. Intercalated disc जो होती है वो दो मसल सेल के बीच में होती है, ठीक है? फिर ये जो है, ये है ब्रांचेस. ब्रांचेस मतलब क्योंकि यहाँ पे एक मसल फाइबर कनेक्टेड है फिर विद द अनदर, राइट? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए सभी कार्डियक सेल्स को बहुत ही साथ में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, तभी तो हार्ट टोटली ब्लड को पंप करेगा. तो ब्लड को पंप करने के लिए, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऐसे ब्रांचिंग पॉइंट्स बीच में होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया एक डायग्राम ऑफ अवर कार्डियक मसल्स. स्मूथ मसल का डायग्राम मैं यहाँ पे बना देती हूँ. स्मूथ मसल में हमने लिखा था दैट द सेल इज स्पिंडल शेप. स्पिंडल मतलब इस तरह के सेल्स होते हैं जो दोनों ही एंड्स पे
टैपरिंग हो, टैपरिंग मतलब दोनों ही एंड्स जो है वो इनके टर्मिनेट होते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे स्ट्राइएशंस नहीं होते। अगर हम तीनों के डिफरेंस की बात करें, तीनों के अगर डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि ये कार्डियक मसल और स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएट है और स्केलेटल मसल मल्टीन्यूक्लिएट है। स्केलेटल मसल में फाइबर्स मतलब स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है जो स्मूथ में नहीं है, कार्डियक मसल्स में है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलेंटरी होते हैं, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी होते हैं और कार्डियक भी इनवॉलेंटरी होते हैं। स्केलेटल मसल बोन से अटैच होते हैं, स्मूथ मसल्स कभी बोन से अटैच नहीं होते और कार्डियक भी कभी बोन से अटैच नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, आप तीनों के लोकेशंस लिख सकते हो, जैसे कि लिम्स और टंग में प्रेजेंट है स्केलेटल, एलिमेंट्री कैनाल और आइस के आइरिस में प्रेजेंट है स्मूथ मसल एंड वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट है कार्डियक मसल। So students, this was our topic of the muscles. Next lecture we will talk about the last topic of this chapter, that is the nervous system, that is the neural tissue.